Friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and the predictions for the month of October 2023. After a very long time, Taurus Ascendant people are going to enjoy an excellent month. In this month, your Ascendant Lord Venus is going to transition through the fourth house and it is going to stay here for the whole month. Now, Ascendant Lord transitioning through the fourth house is always considered excellent. In this case, it is a benefic planet like Venus. Venus also gets the directional strength in this house. That's why you will get all the excellent results that Venus provides for the fourth house. So you will experience peace of mind and domestic happiness throughout the month of October. This is a great time to spend with your family, and especially spending time with your mother will be very fruitful. Venus is going to give you all the luxuries associated with the fourth house. So if you are planning to buy a luxury vehicle, then this is a great month to do so. Venus is going to exchange signs with Sun. So Sun will move to the sixth house on 16th of October, and then you will see a exchange of signs between Venus and Sun. So Sun will be sitting in the sign of Venus. Venus will be sitting in the sign of Sun. So the exchange of fourth and the sixth house lord is going to take place from the 18th of October to 2nd of November. So this again will be a very good time to take loan from the market and buy any property. So if you're planning to make any kind of a expenditure on buying a property, then this again is a good time frame. Rahu is also present in the 12th house, so it is going to make sure that you don't end up with a lot of savings, but then putting that money in the form of an investment into a house is a good proposition to nullify this negative impact of Rahu. Mars rules over your house of business and spouse, and it will be transitioning through the sixth house, which is not considered a good position because the seventh house lord transition through sixth negates the good results of seventh house. There is going to be a very high probability that you are going to get into a huge tussle with your spouse or business partner in this month. Taurus ascendant people wants to have fun, but they usually get a spouse who has a revengeful attitude or who wants to keep secrets from you. So in this case, it becomes very difficult for you to figure out what your spouse is thinking at any point of time. All this confusion and secrecy will lead to some kind of a fight in this month. So just be cautious about this. Mercury is the lord of your second house, which is the house of self earned wealth, and fifth house. So, Mercury is going to move into the sixth house on 19th of October and it is going to stay here till 5th of November. So, people who are students, they are going to see an excellent whole round progress in the month of October because initially, for the first 18 days, the fifth house lord Mercury will be placed in its own house. So this again is a great time to excel in any kind of a competitive exams or studies. And then also when it moves to the sixth house, it will be placed in its friend sign. So if you're planning to appear for any kind of a competitive exam, then 21st to 24th October is a great time to do so. People who are looking for romance will also find the same time frame to be very favorable for any kind of a romantic pursuits. Taurus ascendant people anyways are romantic in nature because they are ruled by Venus, which itself indicates attraction. So they will also find a lot of support from the planets during this month for any kind of a romantic pursuits. Mercury also rules over your self-earned wealth house, and best time for finance in the month of October will be from 10th to 13th of October. You will see a substantial cash flow coming in during these 4 days, and especially if you work in brokerage or commission related works, telecom sector, public relations or publishing business, then this month will be extra resourceful for you as far as finances are concerned. Ketu and Mars conjunction is going to take place in the sixth house in the month of October. So it is going to give rise to sudden conflicts or disputes with your peers or colleagues at the workplace. Especially if you are doing a job, then you need to be very cautious that you don't get into arguments with people. And time frame from 24th to 27th of October is very tricky for you. So try to avoid getting into any conflicts with your peers. This is also not a good time to switch jobs, and people who are in service sector will find the work environment to be
taxing and filled with conflicts. The key is to avoid any kind of a conflicts. This is also not the time to start your own business or do capital expenditure, because the seventh house lord is in sixth and is further getting aspected by Rahu, which itself is in the 12th house. So if you want to do any kind of a capital expenditure, just wait till the time Rahu moves away from the 12th house, which is at the end of October. So you as a person is going to see a lot of increase in the responsibilities at your workplace, though this piling up of your responsibilities will happen gradually, and this is going to continue till the middle of 2025. So if Saturn is well placed in your birth chart, then this kind of a movement of Saturn to the 10th house would mean that you will be able to progress a lot at your workplace. But of course, it will require a lot of hard work. Saturn may be present in its own sign here, but it demands a huge amount of workload from a person before it starts to give you the results. So all those people who are willing to work hard and are disciplined in their work, they will be rewarded by this transitioning Saturn, and time till the middle of 2025 is very good for progressing on the work front. So there are also certain days where you need to remain cautious and you need to avoid taking any key decisions, as well as take care of your health and avoid any arguments. So these dates for you in the month of October are 2nd to 5th of October and 24th to 27th of October. Just be cautious during these 8 days. If you compare this month to the results that you're getting in the previous month, this is an excellent time, especially for people who enjoy the company of their family and mother. This month is going to be excellent. Apart from this, you can also make investments in any kind of a lands and property, buy any kind of a luxury vehicle that you wanted to buy from a long time, have fun with your family members and enjoy your finances, especially from the time frame of 10th to 13th of October. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, पिछले कई महीनों से वृषभ लग्न वालों के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छा समय निकलेगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में पूरा महीना बैठे रहेंगे। तो लग्नेश का चतुर्थ भाव से जाना वैसे भी किसी भी लग्न के लिए बहुत अच्छी चीज कहलाती है, और यहाँ पर जब सौम्य ग्रह हो शुक्र जैसा, तब तो स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली भी हो जाता है, तो ये हर तरह से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लग्नेश का चौथे भाव में जाना। इस महीने में आपको मानसिक शांति मिलेगी और घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिताते हुए बहुत अच्छा समय निकलेगा। अपने मदर के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छा समय है अपने परिवार के साथ शांति पूर्वक समय बिताने का। और अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई, यानी कि जैसे व्हीकल हो गए, कई लोग बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 18 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के समय में चतुर्थेश और षष्ठेश का भी स्थान परिवर्तन होगा, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में बैठे होंगे और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सूर्य भी शुक्र की राशि में बैठे रहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन करेंगे। तो आप लोन लेकर भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहें तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आपको इस तरह का कोई भी निर्णय लेने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिक रहेगा। आपके लग्न के लिए मंगल सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव से आप अपने पति पत्नी या अपने व्यवसाय को देखते हैं। तो सप्तमेश का छठवें भाव से जाना है, हमें सप्तम से दिखाई हुई सारी चीज़ों का टेम्पररी नाश होना कहलाता है। यहाँ पर बहुत तगड़ी संभावना है कि आपके अपने पति पत्नी के साथ कोई जबरदस्त झगड़ा होता दिखता है अक्टूबर के महीने में। ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, और आपके उनके साथ अनबन होगी क्योंकि वो आपसे चीज़ें छुपा कर रखते हैं, उसकी वजह से। तो ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको इस महीने में अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव झेलना पड़ेगा। आपके लग्न के लोग हमेशा मौज मस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि आपका लग्न स्वामी शुक्र है और आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है वो मंगल है, और वहां पर भी वृश्चिक की राशि पड़ती है। तो वृश्चिक एक गटर वाली राशि कहलाती है, यानी कि इसके जो डोमिनेंट लोग होते हैं हमेशा लोगों के सीक्रेट्स को जानने का और अपने सीक्रेट्स को छुपाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत ही सीक्रेटिव लोगों की ये राशि है।
तो आपका पति या पत्नी भी इसी तरह का है, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई सीक्रेट बना के रखता है, और आपको ये बात सोचने में बहुत समस्या आती है कि आपका पति या पत्नी क्या सोच रहा है और वो किस चीज़ के बारे में, उसका क्या व्यू पॉइंट है, ये आपको पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मैरिड लाइफ के लिहाज से देखें तो ये अक्टूबर का महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का वाद विवाद अपने पति पत्नी के साथ टाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बुध आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम का पंचमेश में ही बैठा रहना 17 अक्टूबर तक, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीना बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी 19 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक भी बुध छठवें भाव में बैठे रहेंगे, जो कि उसके मित्र शुक्र की राशि है। तो स्टूडेंट्स के लिए कुल मिला के महीना बहुत ही शानदार है, और पढ़ाई करने की दृष्टि से और जो भी आप रिजल्ट्स वगैरह आते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। 21 से 24 अक्टूबर का समय ऐसा है जब आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, तो उसमें आपके उत्तीर्ण होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आपके लगने के लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। अगेन शुक्र अट्रैक्शन का कारक होता है, तो जो रोमांटिक लोग हैं उनके लिए भी 21 से 24 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहें, आप किसी के साथ प्रेम विवाह में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है चीज़ें इनिशिएट करने की दृष्टि से। बुध आपके लिए द्वितीय भाव का भी स्वामी बनता है, द्वितीय भाव से आप स्वयं का कमाया हुआ धन देखते हैं, तो आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से भी ये अच्छा समय है। खास करके 10 से 13 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है, जिसमें आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा। और अगर आप बुध से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, यानी आप किसी भी तरह के ब्रोकरेज रिलेटेड बिजनेस में हैं जहाँ पर भी कमीशन मिलता है, दलाली जिसे हम कहते हैं वो मिलती है, तो उस सब के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग, प्रिंटिंग पब्लिशिंग से जुड़े हुए लोग, इन सब के लिए भी खास करके कैश फ्लो आने की संभावना बढ़ती है 10 से 13 अक्टूबर के बीच में। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय है ये। एक जो नेगेटिव चीज और हो रही है वो केतु और मंगल का आपस में युति हो रही है छठवें भाव में, तो ये एकदम से आपके कार्यस्थल पे, खास करके अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं, तो आपके कोलीग्स के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप हो सकता है कि कोई चीज़ कैजुअली बोल दें और वो एकदम से बुरा मान जाए, तो एक इमोशनल वाला पार्ट उसमें जुड़ा हुआ मैं देखता हूँ, जिससे कि आपका अपने कार्यस्थल पर अपने पीयर्स के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो उसको भी आप टालिए और इस बात को ध्यान रखिए कि आप किससे क्या बात करते हैं। बस अपनी स्पीच पर ध्यान दीजिए। 24 से 27 अक्टूबर तक का समय ऐसा है जिसमें आपका आपके कोलीग्स के साथ झगड़ा हो सकता है, तो इस बारे में आप सावधान रहिए। अगर आप अक्टूबर के महीने में जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है नौकरी बदलने की दृष्टि से, और आपको आपके कार्यस्थल पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं केतु मंगल की युति की वजह से। तो अगर आप नौकरी बदलते हो तो नई जगह पे जाके वही झेलने से अच्छा है कि आप अपने ओरिजिनल कार्यस्थल पर ही बने रहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, या आप सर्विस से बिजनेस में कूदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा समय नहीं है। सप्तमेश का छठवें भाव से जाना और राहु की दृष्टि उस पर सातवीं, यानी कि ये पैसे का हास होने का दिखाता है। यानी अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपका पैसा चला जाएगा और उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये राहु अब यहाँ से 12वें भाव से निकलने की स्थिति में 30 अक्टूबर को राहु 12वां घर छोड़ के आपके 11वें भाव में मीन राशि में चला जाएगा, जो कि इसके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति कहलाएगी। थोड़ा रुक जाइए अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो। वृषभ लग्न के लोगों के लिए शनि दशम भाव से भ्रमण कर रहा है और ये सितंबर 2025 तक कर्म स्थान पर ही बैठा रहेगा। तो शनि आपके लिए योग कारक ग्रह होता है, और जिनकी भी कुंडली में शनि जन्म कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, वो शनि यहाँ से पास होता हुआ उनको कार्यस्थल पर ऊंचा उठाने का काम करेगा, लेकिन ये भी बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही होगा। आपके लग्न के लोगों के ऊपर शनि देव की विशेष कृपा रहती है, तो जितने भी लोग अभी कमर कस के मेहनत करेंगे उनको ये शनि डेफिनेटली परिणाम देगा यहाँ से जाते हुए, और 2025 के मिडिल तक आपको जिम्मेदारियां भी देगा और ऊपर उठाने का भी कार्य करेगा। अभी हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए, और इन दिनों में आपको किसी के भी साथ वाद विवाद से बचना चाहिए और कोई भी की डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो ये दिन है आपके लिए 2 से 5 अक्टूबर और 24 से 27 अक्टूबर। 24 और 27 अक्टूबर के बीच में आपका आपके कोलिग्स के साथ विवाद हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इन 8 दिनों में आप सावधान रहिए, बट कुल मिला के आप देखेंगे तो लग्नेश का चतुर्थ भाव से जाना अपने आप में बहुत ही शानदार पोजीशन कहलाती है। प्लस गुरु की भी पांचवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, तो कुछ भी नया व्हीकल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मदर के साथ समय बिताना चाहते हैं, सबके लिए ये बहुत ही शानदार समय है। वृषभ लग्न के लोगों को वैसे ही मौज मस्ती मजा में ही जीवन दिखता है, तो उनके लिए ये महीने में
ये सब चीज़ें करने का भरपूर मौका है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।